नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की। अच्छी बात यह है कॉटन किसानों के लिए कि लॉकडाउन के बावजूद जो कॉटन की सरकारी खरीद है, जो प्रोक्यूरमेंट है, वो बढ़ रही है। और महाराष्ट्र में कुल उत्पादन का जो खबरें आई हैं, 77% तक कॉटन बाजार में पहुंच चुका है और सरकार बड़े पैमाने पर खरीद कर रही है। महाराष्ट्र में 34 सेंटर बनाए गए हैं कॉटन खरीद के लिए और वहां पर बाइंग हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की CMD PLD रानी जुड़ी हैं फोन लाइन पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बधाई कि आप लॉकडाउन के दौरान भी CCI ने, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर खरीद की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आगे और कितनी खरीद की योजना है, क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? As you said correctly, even during the lockdown period, the government, the central government, had decided that there will not be, we will not be stopping minimum support price operations. So we had kept our centers open, but I don't. As you know, we work in coordination with the state government because the farmers are certified by the state we purchase, because we had to ascertain the genuinity of the farmers. So we needed the state governments also to keep their APMC markets open. But in the beginning of the lockdown, first phase of the lockdown, there was a little bit of uncertainty about, about this pandemic. So people were not really coming out of the houses. The farmers also, and the labor which is required to load and unload the cotton. So there was not all, because of all these problems, it was a slow start. It came to MSP, which we were already on. It was on at a slow pace because the peak of cotton buying was over in February itself. So March, it was slowing down because we were in the fag end, as you rightly said. There was only around 20-25% of the cotton left with the farmers. So there was a complete shutdown first. Slowly the farmers gained the confidence and they could find labor, and then they started bringing the cotton to us. So right now, during the lockdown period, we have bought about 5 lakh quintals of cotton. We have kept most of the centers in all over India open. In Maharashtra and Gujarat, where the amount of cotton left with the farmers was slightly higher. In other states, we had really bought up to, the arrivals were over 90%. So our procurement was nearly complete. But in these states, there was still about 25 to 30% of cotton still in the hands of the farmers. So they are now bringing slowly. The pace is increasing, but we are there, and we have even now. Though we had a lot of centers even earlier, but now we are even trying to open new centers, because now the private traders totally vanished from the road market. So we want to support all other farmers who were earlier, transacting only with private trade. They may also they want to avail of MSP. So we are trying to help them everywhere. एक क्वेश्चन मेरा आपसे और होगा। ये अच्छा काम है कि आप फार्मर को अच्छा भाव दे रही हैं, लेकिन ट्रेडर्स के मन में एक फियर है। वो फियर ये है कि अगर सारा कॉटन CCI खरीद लेगी, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लेगी, तो आगे प्राइस को CCI ही ड्राइव करेगा मार्केट को, और इससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्या इस लॉजिक में दम है या इस दलील में आपको दम दिख रहा है? नहीं, कोई दम नहीं। ट्रेडर्स का तो कोई इसमें कोई ऐसे सोचने का है ही नहीं लॉजिक। इफ दे वांट टू बी इन द मार्केट, they can very well be there, because they have, in fact, I would say, suddenly deserted most of the market because of course, because of the situation. The demand, both domestic and international, has slowed down. But they have no fear. If they want to continue in the business, even now they can continue to buy, because we have bought only 30% of the total arrivals so far.
70 has been bought by them in a pre-lockdown condition. Only in the lockdown period, we are buying nearly like Okay. most of the cotton which is coming. FAQ cotton. I'm talking about FAQ cotton. ठीक है, ओके। So there's no ओके। logic in बहुत that, बहुत शुक्रिया, that there's any बहुत बहुत price शुक्रिया to be developed. पी अली रानी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए सरकार की कितनी तैयारी आगे और है कॉटन की सरकारी खरीद की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। अब करीब 6 घंटे का ट्रेड अभी नॉन एग्री कमोडिटी में बचा है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, क्रूड की जो शुरुआत हुई है हफ्ते की, एक बार फिर से गिरावट के साथ हुई है। क्या इस बार की गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है, या आपको लगता है कि मार्केट अब लंबे समय तक गिरावट के मूड में नहीं रहेगा? अब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में मार्जिन काफ़ी बढ़ चुका है, तो वॉल्यूम थिन है, और इतनी बड़ी मार्जिन के साथ ज़्यादा स्पेकुलेशन, मतलब हाई मार्जिन के हिसाब से स्पेकुलेशन पे रोक थोड़ी आ जाएगी। और नाइमेक्स का सवाल है, तो जो फंड की जितनी पोजीशन जून में थी वो सब शिफ्ट होके जुलाई में चली गई है इंडेक्स फंड की। तो वहाँ भी जो एक बड़ा बोझा था बाजार में वो शिफ्ट हो गया है, तो टेम्पररी रिस्क इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम वोलेटिलिटी लिमिटेड देखेंगे, यानी 10-12% की तो रहेगी, बट वाइड वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। ओके, तो अनुज जी, ऐसे में अगले 6 घंटे के लिए, आज शाम के कारोबार के लिए क्रूड में इस लेवल पे ताज़ा भाव पर क्या किया जाए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। जिस तरीके से क्रूड के अंदर एक मोमेंटम दिख रहा है, और हमने देखा है कि हायर लेवल से इसमें बिकवाली बनती हुई दिखाई दी है। इवन अगर हम देखें तो जो सप्लाई साइड है वो भी यहाँ पर स्ट्रांग हुई है, तो ट्रेंड जो है वो वीकनेस का ही रहेगा। हमें लगता है नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि हमें लगता है कि नीचे में भाव करीबन 1400 से लेकर 1300 तक के लेवल को दिखा सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन एक्सपेक्टेड है कि $18 तक के लेवल आ सकते हैं। तो बिकवाली हमें लगता है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ओके, तो आपको लगता है कि भावों में अभी नरमी देखने को मिल सकती है, इस पर आप नज़र रखिए। और इस तरह का ट्रेड अभी आपको दिखेगा, यानी कीमतों में और गिरावट दिखेगी। ठीक है बीरेन जी, नेचुरल गैस का मार्केट बहुत वोलेटाइल हो रहा है, और कभी कुछ खबरें आती हैं कभी कुछ। ऐसे में ट्रेड किया जाए या अवॉइड किया जाए अभी? इसमें ट्रेड करना चाहिए। एक तो मार्जिन के हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल है, डेफिनेटली ये भी थोड़ी हाई रिस्क प्रोडक्ट है, लेकिन क्रूड की तुलना में इसका रिस्क कम है, और इसको ट्रेड करने के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही करना चाहिए, ओवरनाइट गैप डाउन गैप अप अवॉइड करने के लिए। यहाँ 150 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, 152 बहुत छोटा स्टॉप लॉस रख के 144 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने 397 में 25 लॉट कॉपर बेचे हैं, कैसा रहेगा आगे? 350 आएगा क्या? अच्छा, 397 397 के भाव पर आपने कॉपर में शॉर्ट किया है, बेचा है। अनुज जी, क्या ठीक ट्रेड है इनका, और क्या इन्हें 350 रुपए तक के टारगेट के लिए अभी वेट करना चाहिए? देखिए संभावना आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा नेगेटिव है। इवन अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो जो ग्लेनकोर माइंस है वो भी ओपन हुई हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो एक सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनिशियली हमें लगता है कि नीचे करीबन 392 से लेकर 390 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनिशियली वो 392-390 के लिए होल्ड करें। उसके नीचे भाव अगर जाते हैं तो नीचे हमें जो नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन 383 रुपये का देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी ये 390 तक को टारगेट करें, उसके नीचे भाव जाते हैं तो फिर नीचे 383 को टारगेट कर सकते हैं। ट्रेंड डाउन है तो मुझे लगता है कि जो उनकी सेल की पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं ये। ठीक है, ट्रेंड डाउन है, आप कह रहे हैं कि सेल की पोजीशन है, इसको होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें आप अभी बने रह सकते हैं, ये राय आपको दी जा रही है। ठीक है, गोल्ड का मार्केट। अच्छा, इस बीच हमारे साथ अंकुश जुड़ रहे हैं पंजाब से। पूछिए अंकुश।
सर नमस्कार सर। सर मेरा भी रेंज से सवाल है। मेरा लेड शॉर्ट है 133 पे, तो इस वीक के लास्ट तक क्या इसका टारगेट और स्टॉप लॉस होगा? सवाल दोहराएंगे अपना? सर लेड शॉर्ट है 133 पे। लेड शॉर्ट है आपका? हाँ जी, 133 पे। अच्छा, लेड में आपने शॉर्ट किया है। बीरेन जी, अभी क्या क्या फ्यूचर है लेड का, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं आगे? काफी कमजोर कॉन्ट्रैक्ट है। फंडामेंटली डिमांड बेहद कमजोर है, चार्ट्स भी कमजोर है। 135.80 का स्टॉप लॉस रख के आगे पोजिशनली शॉर्ट होल्ड किया जा सकता है। 128 का टारगेट रख सकते हैं, 128 129 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी लेड पे है कि अभी आपको लेड में क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर, चांदी का मार्केट अनुज जी अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या चांदी में अभी ट्रेड करना ठीक है, वेट करना चाहिए, या आपको लगता है कि इस लेवल पे अभी एंटर करना मार्केट में ठीक नहीं रहेगा? क्या करें? अच्छा, लगता है अनुज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है सिल्वर के ऊपर? सिल्वर हल्की सी आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड को। बेसिकली बुलियन मार्केट बहुत टाइम के बाद अब वो स्विंग रेंज में आया है, यानी यहाँ लिमिटेड वॉलेटिलिटी है। तो जो दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेड, उनके लिए दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ 41,000 के आसपास बाइंग जोन है, 43,000 के आसपास सेलिंग जोन है। तो ये ध्यान में रखते हुए दोनों साइड की पोजीशन ली जा सकती है। फिलहाल आज के लिए मैं बाय साइड प्रेफर करूंगा सिल्वर में, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड लग रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में अभी बाइंग करना बेहतर रहेगा, बाई करना चाहिए, और ये एक फायदे का सौदा इस वक्त हो सकता है। चलिए रुक करते हैं अगले कॉलर का। अगला कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूछिए। हेलो, मेरे पास जी पूछें। हाजिर में एरंडा 200 बोरी पड़े है, तो दीपावली तक इसका क्या भाव आएगा? अच्छा, कैस्टर दीपावली तक कैस्टर का भाव आप जानना चाहते हैं? आपके पास कैस्टर का स्टॉक है? बीरेन जी, आप तो कैस्टर को ट्रैक करते हैं क्लोजली, इनके पास स्पॉट का माल पड़ा हुआ है, जानना चाहते हैं कि दिवाली तक क्या भाव मिल जाएगा? ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि इसका सबसे बड़ा आधार मानसून पे रहेगा। बारिश होती है या नहीं होती है। पिछली फसल अच्छी थी, अभी एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छा हो रहा है। तो फिलहाल की मानसून के पहले की जो रेंज है उन्होंने जो पूछा है, उसके लेवल से एक्स डीसा का भाव जो 20 केजी का है वो 670 से 870 के बीच रहेगा। ये लिमिटेड रेंज में कारोबार रहेगा। मानसून अगर कमजोर रहता है तो आगे हम 1000 का प्राइस देख पाएंगे, बट उससे ज्यादा तेजी नहीं लग रही। ठीक है, अगला सवाल है अशोक कुमार का, गंगानगर से हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी सर, ऐसे है जी, ग्वार का भाव है 3500 रुपए जी। हाँ जी, तो ये ग्वार का तो 3500 है, तो लोग पूछते हैं 5000 भाव कब होगा? वो 4000 का नहीं पूछते, 4000 कब होगा जी? ये बताओ जी। चलिए, ये सवाल तो बहुत आ रहे हैं, और ग्वार मामलों के जानकार भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। बीरेन जी ग्वार को बहुत ट्रैक करते हैं क्लोजली। बीरेन जी, क्या उम्मीद है नए सीजन में ग्वार प्राइस की? मानसून देखने के बाद अगर काफी कमजोर मानसून रहा, ऐसा नहीं मानना चाहिए, काफी कमजोर मानसून रहा तो ये 5000 भाव आ सकता है। बट इसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं 5% से कम चांस देखता हूँ। मोटा मोटी ये 3000-3600 के बीच रहेगा। हाँ, ओके, ठीक है। अगला सवाल मुकुंद का है, जामनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुंद जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा बीरेन जी से सवाल है। मेरे पास गोल्ड का 44,000 का पुट है, 530 में लिया हुआ। अच्छा, 520 में गोल्ड का पुट लिया है आपने? 44,000।
ओके, हाँ हाँ ठीक है। वीरेंद्र जी बताइए, ऑप्शन में ट्रेड किया इन्होंने गोल्ड में। हाँ, ऑप्शन में क्या टाइम वैल्यू के हिसाब से जल्दी इरोड हो जाती है इसकी टाइम वैल्यू। तो जब अपने को उन्होंने पुट लिया है, तो अगर जल्दी मंदी हो जाए, स्पीडी मंदी हो जाए, तो ही उनको फायदा है। करंट सेटअप पे मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पुट उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का हल्का सा रुझान अपसाइड का है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी मार्केट में थोड़ी तेज़ी की गुंजाइश है, तो पुट अभी निकाल देना चाहिए, ठीक है। एग्री मार्केट की बात करते हैं, और इस बीच चलिए विशाल जुड़ रहे हैं यूपी से। पूछिए विशाल जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा के लिए है सर, पहला सर मेरा क्वेश्चन गोल्ड के लिए है कि सर गोल्ड के रेट सर इतना बढ़ रहे हैं, वोलेटाइल है सर, कहाँ तक जा सकता है सर? लास्ट नीचे में और सर ऊपर में? गोल्ड का भाव आगे में कहाँ तक जा सकता है? अनुज जी बताइए। 45,855 ये गोल्ड का ताज़ा प्राइस है। आज 300 रुपये से ज़्यादा दाम गिर गए हैं। आगे का अगर एक महीने की ही बात करें, मान लीजिए अभी मई की शुरुआत है, तो मई के एंड तक आप गोल्ड का प्राइस क्या देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, गोल्ड में देखें तो यहाँ पर भाव काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो करीबन $1720 मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। हालांकि कुछ दबाव हमें लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे में करीबन 44,000 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक हमने देखा था कि भावों में गिरावट रही है, तो हमें लगता है कि इस हफ्ते में भी और इस महीने में भाव कुछ नेगेटिव टोन में आ सकते हैं। हालांकि ज़्यादा वीकनेस नहीं होगी, आपको नीचे करीबन 43,500 या 44,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा वेट करें। 43,500 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो आप बाय करके चल सकते हैं। जहाँ तक मंथ एंड की सवाल है, मुझे लगता है कि भाव 43 से लेकर 44,000 के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे। ओके, इस बीच हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। पूछिए दिनेश जी। नमस्ते सर। हेलो, नमस्कार, हेलो। पूछिए। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ नमस्ते सर, ये मेंथाल पर सवाल है सर मेरा। ये मई और जून में मेंथाल का क्या भाव आएगा? ऊपर या नीचे में कहाँ तक नीचे जा सकता है, ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? मेंथा, ओके, मेंथा का आप टॉप और बॉटम दो चीजें जानना चाहते हैं। फंडामेंटल के आधार पर वीरेंद्र जी क्या प्राइस आउटलुक अभी आपको लग रहा है मेंथा का? इसमें चाइनीज एक्सपोर्ट्स थोड़ी जो डिस्टर्ब हो गई है लॉकडाउन के चलते हुए, और फिजिकल मार्केट भी बेहद डिस्टर्ब है। तो आज फ्यूचर्स में सिर्फ 6 लोट का काम है। तो जिस कमोडिटी में सिर्फ 6 लोट का काम है, तो उसमें कैसे हम व्यू बना पाएंगे? तो व्यू नहीं बनेगा जब तक वॉल्यूम सही बात है। एक थिन वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो ऐसे में कोई बड़ा फंडामेंटल यहाँ काम करता नहीं है बहुत कम वॉल्यूम में। तो इससे आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है, इस पर आप अमल करें। अनुज जी, एग्री मार्केट में खास करके जब कल का मार्केट ओपन होगा एग्री का, तो चना वायदा आज गिरकर बंद हुआ है। कल का बाजार आपको चने का कैसा लग रहा है? देखिए पिछले 2-3 दिनों से ही चने में गिरावट रही है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड बना है थोड़ा नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है। हमें लगता है कि नीचे जो ओपनिंग रहेगा या फिर जो कल ट्रेड रहेगा थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 4100 से लेकर 4,080 तक के लेवल चने के मई वायदा में देखे जा सकते हैं। तो बिकवाली का ट्रेंड मुझे लगता है कि कल भी देखने को मिल सकता है। ओके, मनोज हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड से। पूछिए मनोज जी। सर मेरा नाम मनोज है। सर मैं काली मिर्च के बारे में जानना चाह रहा था। सर मैंने हाजिर में खरीदी हुई है काली मिर्च 350 रुपए के भाव से। अच्छा, काली मिर्च आपने खरीदी है। काली मिर्च के बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या वीरेंद्र जी? आप कवर करते हैं क्या काली मिर्च को? नहीं, पहले मैं ट्रैक करता था, अभी नहीं ट्रैक करता। अच्छा, अनुज जी आपका कोई व्यू या अभी ट्रैक नहीं करते हैं? नहीं सर, जो एक्सचेंज में ट्रेडेड कमोडिटी होती है वही हम ट्रैक करते हैं, तो अभी काली मिर्च को ट्रैक नहीं कर रहे हैं सर। हाँ ठीक बात है, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रैक नहीं करते हैं। लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपको किसी स्पॉट के जो ट्रेडर हैं वो आपको व्यू
यहाँ पर दे पाएँ जो स्पॉट के जानकार हैं। ठीक है, आगे राकेश जुड़ रहे हैं सूरत से। पूछिए राकेश जी। मृत्युंजय सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अपने क्रूड में है या नेचुरल गैस में है, जब मैंने देखा है जब अपने क्रूड जब हाई पे जाता है तब जाके इसका जो रोल ओवर होता है ना सर, इसमें 500 पॉइंट का डिफरेंस कर देते हैं। तो आज जब ऊपर जाता है तब भी सर ये चीज होती रहती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर याद हो तो पिछले साल 5700 तक क्रूड ऑयल चला गया था, तो उस समय भी सर 200 से 300 पॉइंट का रोल ओवर हो जाता है। अभी जैसे क्रूड इतना नेगेटिव आ गया, इतना नीचे आ गया, जैसे 795 तक का लो किया है, तो सर वहाँ पे 500 पॉइंट का रोल ओवर है। मेरा एक ही आपसे अनुरोध है सर, जो आज जो भी क्लाइंट खरीद रहे हैं वो अपने बेसिस पे मान लीजिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके वो खरीद रहे हैं, तो सर उनको आज जो रोल ओवर का एक मार्जिन होता है, जैसे नॉर्मल जब मार्केट चलते हैं, चाहे वो क्रूड का हो, चाहे एनजी का हो, चाहे कॉपर का हो, किसी का भी, तो 1 रुपये 2 रुपये का या क्रूड में 20 पॉइंट का डिफरेंस रहता है रोल ओवर में, ठीक है ना। तो सर अभी पहले हुआ 700 पॉइंट का, अभी भी 200 पॉइंट का चल रहा है। बीच में एनजी में आपने देखा होगा सर, एनजी का जो रोल ओवर हुआ कटिंग में 16 रुपया 17 रुपये का डिफरेंस है। तो सर जो बायर होते हैं, जो ऊपर से खरीदते हुए आते हैं, इन्वेस्ट करते हुए आते हैं नीचे तक, आज सर एक समय तो उनका ऐसा होता है जो उनका रोल ओवर में सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। जैसे उनको कटिंग करनी रहती है, मान लीजिए 2190 पे अभी कटिंग हुई है लास्ट वाली, और अगर उनको दूसरा फ्यूचर खरीदना था तो 38 पे खरीदना था। तो सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इतनी मुहिम चलाए हैं तो इसकी एक सेबी को या किसी को भी एक मतलब ऐसा होना चाहिए जो एक फिक्स हो जाए आइटम, जब भाई 2 रुपये का डिफरेंस है, 5 का रहेगा या 10 का रहेगा, जो डिफरेंस रहे सर वो फिक्स हो जाए। क्यों आज जब नॉर्मल मार्केट चलता है ना सर, तब तो एक तरह से चलता है, लेकिन जब ऊपर या नीचे जब आते हैं ना। आपकी बात समझ गया मैं, हाँ आपकी बात मैं समझ गया। बीरेन जी, क्या ये मुमकिन है क्या, या ये फेयर प्रैक्टिस होगा क्या, फिक्स कर दिया जाए रोल ओवर कॉस्ट, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, बट मैं लाइटली मोड में ऐसा कहूंगा, उनको बोधि ज्ञान हो चुका है तो वो काफी उनकी बात ध्यान में रखनी चाहिए। इतने रोल ओवर है तो वो इतना समझ जाए कोई भी, तो काफी मुश्किल से या नुकसान से बच सकते हैं। जिगर ठक्कर हैं इस वक्त हमारे साथ। ठक्कर साहब पूछिए। नमस्कार सर जी। हेलो नमस्कार, पूछिए। गोल्ड में करंट रेट से क्या करना चाहिए, बाय या सेल? सोने में बिल्कुल ताजा भाव पर अनुज जी 300-350 रुपए की गिरावट है अभी गोल्ड में। इस लेवल पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या? मैं इन्वेस्ट की बात नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात पूछ रहा हूँ। क्या कोई ट्रेडिंग हो सकती है क्या इस लेवल पे? देखिए 45 अभी 830 के आसपास रेट चल रहे हैं, तो 45 830 45 900 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बिकवाली की जा सकती है। नीचे हमें लगता है कि 45,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट हमें लगता है कि नीचे करीबन 1695 1690 तो डॉलर तक के लेवल यहाँ पर आ सकती है। ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है, हालांकि डे में हाई बनाया है, बट हाई से मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस गोल्ड में यहाँ पर आ सकता है, तो गोल्ड के अंदर बिकवाली की जा सकती है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में बिकवाली कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 42,550 का रहेगा, टारगेट 41,400 तक देखने को मिल सकता है। बीरेन जी, आपकी कॉल। नेचुरल गैस में 151 पे सेल रहेगी, 153 का स्टॉप लॉस रहेगा, 144 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल। आखिरी कॉल जिंक में रहेगी। बेस मेटल में कुछ बिकवाली देखने को मिल रही है, तो जिंक के अंदर बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 154 का लगाएं, टारगेट नीचे 142 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।